Welcome back, friends. In the Sunday edition of This Is Exclusive, absolute lawlessness in some pockets of Bengal where the Mamata government almost seems like a wall. And that's going to be our focus with some exclusive pictures and lives, including possibly of Shukanto Majumdar, the state BJP president. Also, another exclusive, which is from Kashmir, where a separatist leader talks to us and tells us why and how he made that transition from being a member of the All-Party Hurriyat Conference to now joining the national mainstream. What changed after abrogation of Article 370 that has effectively put the last nail in the coffin of separatism in Kashmir? That's going to be our focus. Let's begin with the headlines. मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं। Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath lashes out at Mamata Banerjee, says Hindus murdered in Bengal. TMC tries to shift the blame over the violence in Murshidabad to the BJP, while the two BJP MPs write to Amit Shah demanding AFSPA imposition in the state. BJP Shubhendu Adhikari, the leader of opposition in Bengal, claims 400 Hindus forced to flee in Murshidabad after violence over Waqf protests. जो गवर्नमेंट करी है, जिससे वक्फ को बर्बाद करने की पूरी कोशिशें की जा रही है, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला लिया है, हम उसकी तायीद करते हैं। AIMIM chief Asaduddin Owaisi announces protests over Waqf with AIMPLB on April 19. Congress, BRS, YSRCP to send representatives. लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं। और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है, लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, हम अकेले नहीं हैं इसमें। As showdown continues over Waqf Act, Jamiyat Ulema-e-Hind Chief Maulana Mahmood Madni fearmongers over the law, says we are ready to fight and sacrifice. The BJP files FIR against Congress leader Kanhaiya Kumar over controversial remarks on RSS and Prime Minister Modi. Welcome again, friends. Amid violence in West Bengal's Murshidabad, BJP leader and West Bengal Assembly's leader of opposition, Shubhendu Adhikari, claimed earlier in the day that more than 400 Hindu families have been forced to flee and turned refugees in their own land. They had to leave their houses, and this happened because of the kind of violence we have seen panning out in pockets of Bengal in the north and the central parts, particularly the Murshidabad district. And our reporter Bhaskar is there on the ground to check whether the claim made by the leader of opposition of Bengal is true or not. Let's look at that ground report, and then Bhaskar joins me live on the other side. इस वक्त रिपब्लिक जहां पे है, यहाँ पे कई सारे लोग, कई सारे हिंदुओं ने शेल्टर लिए है। क्यों? इन लोगों ने मुर्शिदाबाद से भाग के आने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि जिस तरह का वायलेंस चल रहा है मुर्शिदाबाद के अंदर, इस वायलेंस की वजह से बात करते हैं। आप लोगों का घर कहाँ पे है? हम लोग का दुलियान मुर्शिदाबाद, दुलियान माय हॉल के उधर है, मुर्शिदाबाद में। तो आप लोग इधर क्यों है? उधर मुस्लिम ले पूरा भांगचूर कर दिया हमारा। उधर है बम बम जा बुमा टुमा सब फेंक रहा है उधर। हम लोग के उधर रह नहीं सकते हैं। ईट फेंक रहा है, ईट सब फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, घर में बहुत पत्थर फेंक रहा है। उधर रुकने की भी जगह नहीं है हम लोग का, बहुत नुकसान कर दिया हम लोग का। एक टाइम था जब बांग्लादेश से लोग भाग के आए थे पश्चिम बंगाल में, ताकि अपना जान मान सम्मान बच जाए। तो यही तो लग रहा है,
हम उधर धुलियान में ऐसा बोल रहा था कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। अभी उधर भी सबसे ज्यादा हो रहा है, उधर ही सबसे ज्यादा उधर ही हो रहा है। तो ममता की पुलिस क्या कर रही है? ममता पुलिस देख रहा है क्या कर रहा है, कुछ नहीं। उन लोग कुछ नहीं फेंक रहा है तो उन लोग का रिटर्न अभी फेंक रहा है। अभी आप लोगों को यहाँ पे सेफ लग रहा है? सेफ फील हो रहा है? इधर सेफ लग रहा है, हम लोग को सेफ लग रहा इधर सेफ लग रहा है। है। इधर देख रहे पुलिस भी है, सारे अधिकारी के भी है, इधर सबसे ज्यादा सेफ लग रहा है इधर। लेकिन आखिर कितना दिन ऐसे चलेगा? हाँ, दीदी कितना क्या दिन हाल है चलेगा, उधर कितना दिन? की अवस्था देखिए? ওই যে হিন্দুদের বেছে বেছে ভাঙছে, চুরছে, বোম ফেলছে, মারছে, পিটছে, দিয়ে আমরা ভয়ের মধ্যে আমরা বাড়িয়ে গেছি ঘরে। आप लोग भाग के आए পালিয়ে এসেছি এখানে। और इस वक्त देखिए जो हालात है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के, वो हालात बहुत ही गंभीर है। बहुत सारे लोग अपना घर मकान सब छोड़ के भाग के आने में मजबूर हो गया, क्योंकि उधर जिस तरह से दबाई मच रहा है, जिस तरह से उन लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है, जिस तरह से उन लोगों को घर जला दिया जा रहा है, उन लोगों का सारे चीजें लूट लिया जा रहा है, और ऐसे भी एलिगेशन आ रहे हैं कि पीने के पानी में भी जहर मिलाया जा रहा है। ये एलिगेशंस भी ला रहे हैं ये सारे लोग, जो अभी मालदा में एक हाई स्कूल के अंदर शेल्टर लिए हुए हैं। और उन लोगों का कहना है कि हाँ, अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत सेफ फील हो रहा है, क्योंकि बीएसएफ के जवान से, क्योंकि यहाँ पे पुलिस थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो ऑफिशियल्स भी थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बीएसएफ के जवान, उन लोगों ने यहाँ पे जो एरिया है वो एरिया की सिक्योर करने के लिए जो काम, वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल बार बार सामने आ रहे हैं, आखिर कितना दिन और कितना बार ऐसे भाग के जाना पड़ेगा जो इस पश्चिम बंगाल में रहते हैं वो उन हिंदुओं को? अगर आखिर ममता पुलिस, ममता एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती है? Okay, Bhaskar joins us live. He had filed this report earlier from Malda. And Bhaskar, just tell us the geography. These people who are living in camps now, turned refugees in their own land, they are from which district, which taluka, which block? And now after migrating, where are they staying and how many of them are there? कितने लोग हैं ये? कम से कम 600 लोग यहाँ पे है जो मालदा जिला के अंदर बिल्कुल जहाँ पे बॉर्डर है मालदा और मुर्शिदाबाद, बीच में बस एक नदी है, यहाँ पे रह रहे हैं। और इन लोगों का घर है मुर्शिदाबाद जिला के धुलियान में, जो कि अभी ये लोग जहाँ पे है मालदा में, उसके बस बगल में ही है। मालदा और मुर्शिदाबाद के दो बॉर्डर जो एरिया है, ये बॉर्डर एरिया का डिफरेंस है, बीच में सिर्फ एक नदी है। और इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से धुलियान में इन लोगों के ऊपर टॉर्चर चल रहा है, लगातार टॉर्चर चल रहा है, इन लोगों का घर लूट लिया जा रहा है, इन लोगों के घर पे आग लगा दिया गया। और ऊपर से बस यही नहीं, पीने के पानी का जो रिजर्वर है उस रिजर्वर में भी जहर डाल दिया गया इन लोगों के तरफ से, जो लोग अभी वाकफ अमेंडमेंट लॉ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए वायलेंस स्प्रेड कर रहे हैं। और बस इतना ही नहीं, रिपब्लिक के सामने ये लोग कम से कम 600 हिंदू भाग के चले आए मालदा मुर्शिदाबाद जिला के धुलियान से। और इन लोगों का कहना है सिर्फ यही नहीं, लगातार ये थ्रेट भी इन लोगों को मिल रहा था कि भास्कर, मेरा सवाल ये है कि 600 अगर लोग हैं और वो भागकर आए हैं तो सरकार क्या कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। सरकार ने कुछ, हैज द गवर्नमेंट टेकन केयर ऑफ देम? हैज द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सम रिलीफ टू देम? कुछ उनको राहत दिया है सरकार ने? नो अभिषेक, एब्सोल्युटली नॉट। अभी तक सरकार की तरफ से कोई एक रिलीफ मटेरियल भी इन लोगों के पास आया नहीं। और ये लोग जहाँ पे शेल्टर लिए हुए हैं, इसके बगल वाले जो लोग रहते हैं, ये जो गांव है, यहाँ पे जो आम आदमी है वो सब मिलके घर से चावल, दाल और बच्चों के लिए खाना, कपड़ा सब लेके इन लोगों को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अभी तक इन लोगों का कहना है कि सरकार के तरफ से, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट के तरफ से एक भी कोई रिलीफ मटेरियल इन लोगों के पास आया नहीं। और हालांकि आज भाजपा की तरफ से 5 विधायक पहुंचे थे इधर, और उन लोगों का कहना है कि हाँ, भाजपा इन लोगों के साथ रहेगी। भाजपा का जिम्मेदारी नहीं है, सरकार का जिम्मेदारी है। मेरे को एक सवाल पूछना है, आप बीच में, मैं सुन रहा था आपके वॉक थ्रू में, आप कह रहे थे भास्कर कि कुछ
पानी में जहर मिलाया है, ये बात कहां से आ रही है? बहुत गंभीर है, दिस इज वेरी सीरियस. फ्रॉम वेयर इज इट कमिंग? बिल्कुल, देखिए मुर्शिदाबाद के धुलियन से जो लोग भाग के इधर आए, उन लोगों का कहना है कि उन लोगों के पीने का पानी का जो रिजर्वर है, उस रिजर्वर के अंदर जहर डाल दिया गया ताकि कोई पानी पी न सके और भाग के बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाए. ऐसा एलिगेशंस आ रहे हैं. जो हिंदू अपने जान और ईमान बचा के मुर्शिदाबाद से मालदा आ गए, उन लोगों का कहना है कि पीने के पानी का जो रिजर्वर है, जहां से वो लोग पानी पीते हैं, हर रोज का पानी उन लोगों को मिलता है, उस पानी के टैंक के अंदर जहर डाल दिया गया. और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी काफी सारे दवाई लोग कर रहे हैं कि जो आदमी वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्यों इतना तोड़फोड़ कर रहे हो, क्यों इतना आग जला रहे हो, उन लोगों के ऊपर, उन लोगों के शरीर के ऊपर पेट्रोल डाल दिया गया. और ऐसे भी बात बोला गया कि अभी चुप हो जाओ, नहीं तो यही जिंदा जला देंगे. ऐसा एलिगेशंस आ रहे हैं. जो लोग अभी मालदा में शेल्टर पे है, जो लोग मुर्शिदाबाद के धुलियन से भाग के आए हुए, उन लोगों का कहना है. ये अभी मुर्शिदाबाद में कैसी हालत है, भास्कर बताएं जरा. एज ऑफ नाउ, एज वी स्पीक, व्हाट इज द सिचुएशन इन मुर्शिदाबाद? इज वायलेंस अंडर कंट्रोल? Is state visible there or state is absent? What is the police doing? Are the central forces already deployed because they were requisitioned and the Calcutta High Court had asked them to be sent? Is the situation in control now or even now it is not? अभिषेक, देखिए अभी तक सिचुएशन पूरी कंट्रोल पे नहीं आया है. और हालांकि ये आपको बता दूं कि और 2 दिन के लिए इंटरनेट सर्विस सस्पेंड किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, ये जंगीपुर सब डिवीजन में. और बीएसएफ जवान काफी भारी मात्रा में अभी तैनात है. उसके साथ सीआरपीएफ के 5 कंपनी की जवान को भी डिप्लॉय किया गया है. जब तक बीएसएफ और सेंट्रल फोर्स के रूट मार्च एरिया डोमिनेशन चल रहा है, तब तक जो एरिया है जहां पे रूट मार्च और एरिया डोमिनेशन चल रहा है, वो सही रह चुका है. लेकिन काफी सारे जगहों पे, हालांकि ये बात तो सच है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से BNS 163, जो कि अर्लियर सेक्शन 144 था, वो इम्प्लीमेंट किया गया था. लेकिन ये सेक्शन 144 या BNS 163 को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक्टिविटी पुलिस से उम्मीद थी सबका, वो एक्टिविटी नहीं था. ऐसा भी एलिगेशंस आ रहे हैं कि पुलिस को बुलाने के बाद 4 घंटा हो गया, फिर भी कोई एक पुलिस ऑफिसर भी इन लोगों के जो रेस्क्यू ऑपरेशन, वो रेस्क्यू के लिए जो स्पॉट है वहां पे नहीं पहुंचे. अभिषेक, we can see a widespread failure of the state law and order machinery there in Bengal, because of which this flare up happened and the protests turned violent. There is all likelihood that these were planned, and hence there is an element of conspiracy which the state should look into. And of course, we'll continue our ground coverage from Murshidabad and Malda tomorrow also. We believe we're getting reports that the focus now has shifted to Malda and to all these people who have become refugees in their own land, and we are going to bring to you their travels all through the next couple of days till the time that the state takes care of them. Moving on for now, thank you so much, Bhaskar, for joining us. Moving on to Kashmir, where we have seen so many changes happening post the abrogation of Article 370. Under the Prime Minister Modi, Narendra Modi, and his leadership, there are many stories of transformation that have come in, from a hardcore separatist leader to a constitution believer in this case. Hakim Abdul Rashid's story is one of its kind. He once was a hardcore separatist, but now is a mainstream leader. Hakim Abdul Rashid was once a fiery separatist voice, echoing anti-India sentiments on the streets of Jammu and Kashmir. He has now taken a decisive step into the mainstream and severed all his links with the All Parties Hurriyat Conference, the umbrella separatist group. As chairman of the Muslim Democratic League, his own separatist faction, he is now dissociated from the Hurriyat. And earlier we spoke to him in Srinagar, and this is what he had to say on his ideological
change, on the change in his politics, and what made him review his understanding of Kashmir's connections with India and why he disconnected from the Hurriyat. Let's listen into Hakim Abdul Rashid. In this today's edition, I'm joined by the Hakim Abdul Rashid, who was the hardcore separatist leader from the Kashmir Valley and who has joined the mainstream now. Today, he is going to speak with the Republic TV exclusively why he has joined the mainstream in the Kashmir Valley. आपका बहुत खैर मकदम है रिपब्लिक टीवी में. आप मुझे बताइए क्या आपको आइडिया आया जो आपने मेन स्ट्रीम अब ज्वाइन किया? हालांकि इससे पहले अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें काफी डिस्टर्बिंग माहौल था. अभी किन वजूहात पर जो है आप मेन स्ट्रीम ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, हमारी जिंदगी का सफर बहुत लंबा रहा है. हमने 1987 ईस्वी में मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के जरिए अपनी जमहूरी हकूक की बहाली के लिए जद्दोजहद शुरू की. लेकिन फिर जब वहाँ हमें महसूस हुआ, नौजवान पूद को महसूस हुआ कि यहाँ उनके ख्वाहिशात के बरक्स वो कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, तो फिर इस ख्वाहिशात के होते हुए लोगों ने एक नया तर्ज इख्तियार किया और उस रवैये पे चल पड़े जिसका हमने आज तक यहाँ पर माहौल देखा. और उस माहौल के होते हुए हमने फिर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जरिए से आगे अपनी तहरीक को जारी रखना चाहा, जो अमन और आश्ती और सलामती के लिए और लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक ये मसाइल के हल के लिए हम कोशिशें करते रहे. हकीम साहब, आप मुझे बताइए, आपको लग रहा है इससे पहले अगर 2019 की पहले अगर हम बात करें, जब यहाँ पे हड़ताल कॉल्स दी जा रही थी हुर्रियत की तरफ से या बाकी जितने भी सेपरेटिस्ट ग्रुप है, आपको लग रहा है वो टाइम का जाया हो रहा था और अब आपको लग रहा है कि आप डिलीवर कर पाओगे वो चीज जो आप पहले नहीं कर पाए? हालांकि इससे पहले अगर हम बात करें, काफी जो यूथ हुआ कश्मीर का वो मिसगाइडेड यूथ था एंड काफी जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में उनमें उनकी इन्वॉल्वमेंट थी. अब आप चाहते हो कि उन लोगों को सुधारने के लिए आप मेन स्ट्रीम में इसलिए आए ताकि आप उनको मेन बताएं कि क्या है रियलिटी क्या है. हालांकि रिसेंटली हमने देखा किस तरह से अमित शाह कश्मीर दौरे पर आए थे, उन्होंने भी कहा कि किस तरह से सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के जो लोग हैं जैसे आप वो किस तरह से मेन स्ट्रीम ज्वाइन किए हुए हैं. देखिए, 2019 से पहले जो यहाँ की सूरत हाल थी, यहाँ लोग एक अंदाज से अपनी जद्दोजहद जारी रख रहे थे. हालांकि हम उस वक्त भी पीसफुली पुरअमन तौर पे अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए थे और जो हमें महसूस हो रहा है कि उस अंदाज से लोगों की खिदमत करना, लोगों की ख्वाहिशात और लोगों के एहसासात को बड़े ऐवानों तक पहुंचाकर उनको इत्मीनान देना, वो शायद उस तरीके से अब मुनासिब नहीं है. हमें चाहिए कि हम लोगों की खिदमत भारतीय जमहूरी दायरे में आकर भारत के लोगों के लिए भी और कश्मीर के लोगों के लिए भी अमन और खुशहाली के लिए कोशिश करें. और इस हवाले से जो अमित शाह जी ने हमारा इस हवाले से खैर मकदम किया, हमने कल भी उनका शुक्रिया किया और आज भी हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक मौका फराहम किया है कि हम लोग भी आज़ादाना सोच लेकर आज़ाद मुल्क के साथ अपनी आज़ादी एंजॉय करें और तमाम जो शहरी आज़ादी की हुकूक इन भारतीय आईन के अंदर हैं उनके तहत अपनी ज़िंदगी भी चलाएं और लोगों को भी उस हवाले से उनके हुकूक दिलाएं. हकीम साहब, मुझे ऐसे भी कुछ लोग हैं हमारे कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें या बाहर से कुछ ऐसे अभी भी लोग हैं जो लगातार अभी भी कोशिश कर रहे हैं जो कश्मीर का माहौल है उसको कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज करने की प्रयास कर रहे हैं. क्या बताना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो अभी भी कश्मीर में चैन से यहाँ की युवा को या बाकी चीजों को स्मूथली नहीं होने दे रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अब लोगों को महसूस किया जाना चाहिए कि हर कोशिश का एक नतीजा होता है. जब हमने कोशिशें शुरू की और आज करीबन 70 साल हो गए, नतीजा अभी तक ला हासिल है. अब अगर और भी हम इसी तरह
चलते रहे तो मजीद कब्रिस्तान बनेंगे, चाहे इधर के लोगों के चाहे उधर के लोगों के। मजीद इक्तिसादी तौर पे हम निढाल हो जाएंगे, इधर भी उधर भी। तो इससे बेहतर ये है कि हम एक ऐसा रास्ता इख्तियार करें जिससे यहाँ अमन और सुकून और चैन आ जाए। लेकिन मैं ये आपकी चैनल की वसातत से भारत सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि अगर आज एक मौका मिल रहा है लोगों को इस जमहूरी मुल्क के साथ अपने रवाबित बढ़ाकर आगे बढ़ने का, और वो समझते हैं कि इस मुल्क में हमारे एहसासात जो हैं उनको कहीं भी कदगन नहीं होगी, तो उनको चाहिए कि वो ऐसे इक़दामात उठाएं जिनसे वाकई कश्मीरियों को लगे कि हमें कहीं से दबाव और धौंस के जरिए किसी और तरफ नहीं धकेला जा रहा है, बल्कि जिस तरह अमित शाह जी ने हमारा खैर मकदम किया है, मैं कहता हूं कि जुबानी खैर मकदम से ज्यादा अब अमली खैर मकदम करने की जरूरत है, लोगों के दिलों में जाने की जरूरत है और लोगों के दिलों को आपस में जोड़ने की जरूरत है। हम चाहते हैं ये जो हमारे यहाँ से पिछड़े हुए लोग हैं, जो पंडित बरादरी हमारी है, वो हालात की वजह से कहीं और गए हैं, या हमारे कुछ और लोग हैं वो कहीं और है, सबको अब वापस आकर अपनी रियासत में रियासती हुकूक के साथ अपने हुकूक की बहाली के लिए सामने आना चाहिए और एक साथ मोहब्बत के माहौल में, अखुवत के माहौल में, भाईचारगी के माहौल में आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ये भी मुझे बताइए, जब सईद अली शाह गिलानी से आपकी मुलाकात होती थी, जब आप उनके साथ मीटिंग्स वगैरह करते थे, तो वो किन चीजों का जिक्र करते थे? या यासीन मलिक से भी आप काफी टाइम मिले हैं, काफी सेपरेटिस्ट जो भी लाइक एंटी नेशनल प्रोटेस्ट होते थे, उनमें किस तरह का चर्चा होता था? क्या उन्होंने कभी इस चीज का जिक्र किया आपके साथ कि नॉर्मल सी से ही काम हो जाएगा, जो ये पत्थरबाजी है या बाकी जितने भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, इनसे कुछ नहीं होने वाला है? देखिए, जिन साहब का आपने नाम लिया है या ऐसी दूसरी क़यादत जो है, उन सब के दिलों में और जहनों में कुछ ख्वाब थे और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो अपनी तरह की जद्दोजहद में मसरूफ रहे हैं। अब अगर हमने 70 साल बाद ये नहीं पाया कि हमारे वो ख्वाब पूरे हुए या उनका कोई नतीजा सामने आया, मैं अपनी बात करूंगा। मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं अपनी जमात मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग को लेकर एक जमहूरी दायरे में उतनी ही बात करूं जितनी मैं बात कर सकता हूं और जितनी मुझे सकत है उतना ही मैं काम करूं। हाँ, जिसके बड़े ख्वाब हैं वो उस तरह सोच सकता है। मैं किसी के सोच पे न कदगन लगा सकता हूं और न कोई किसी की सोच पे पहरे बिठा सकता है। अलबत्ता जिसकी सोच और फिक्र बदल चुकी है और वो आया है, मुझे लगता है कि भारत सरकार को ऐसे लोगों को खुश आमद दिल से करना चाहिए और अमन और आश्ती के लिए माहौल बनाना चाहिए। मैं ये भी इस वक्त आपकी वजातत से गुजारिश करूंगा, जो जेलों में लोग बंद हैं उनको भी एक आज़ादाना माहौल फराहम किया जाना चाहिए ताकि वो फिर से सोच सके कि हम कहाँ थे, कहाँ जा रहे हैं और हमें आज क्या करना है। कल की बात कल थी और आज की दुनिया में हमें ये देखना है कि हम खुद कैसे जिएं और दूसरों को कैसे जीने का मौका हम फराहम करें। इसलिए आज चाहिए कि तमाम कदगनों को उठाकर, तमाम पाबंदियों को उठाकर जेलों से लोगों को रिहा करके एक माहौल पैदा किया जाए जहां से लोगों को लगे कि हम लोग भी एक आज़ादाना माहौल में जी रहे हैं। All right, from Kashmir to Madhya Pradesh now, not related to Waqf, but communal violence erupted in Guna town of the state, and this was during the Hanuman Jayanti celebrations last evening, and since then, of course, a major law and order clampdown has happened. 9 people have been arrested, and the situation still remains tense. So let's look at some of the ground reports coming in from Guna in Madhya Pradesh. गुना में जो हिंसा हुई उसके हम लगातार एक के बाद एक सबूत दिखा रहे हैं, पर्दे खोल रहे हैं। फिलहाल देखिए जो
कर्नलगंज की मस्जिद है वो सामने है। पुलिस की टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। मस्जिद के पास ही ये पुरुषोत्तम जी का मकान है और इनकी मकान की बालकनी पर देखिए यहाँ तमाम आप देखेंगे ईंट जो है वो पड़ी हुई है, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके घर पर पथराव हुआ, ना सिर्फ बालकनी में बल्कि घर के अंदर। यहाँ पर देखिए आप अंदर आएंगे कैमरामैन मेरे, ये देखिए ये 1 पत्थर 2 पत्थर 3 पत्थर ये ईंट, इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए जैसा का तैसा सब अभी उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। पुरुषोत्तम के घर की ये हालत है और जब इनके घर पर पथराव हुआ तो ये काफ़ी डरे हुए थे, पूरे परिवार के लोग डरे हुए थे। पुरुषोत्तम जी क्या हुआ था? मैं तो सर पथराव के समय ही आया था, दुकान से आ रहा था तो रास्ते में यहाँ पथराव चल रहा था तो मैं दौड़कर घर पे आया तो विक्की खान ने मेरा मोबाइल छीना और मुझसे बोला कि वीडियो बना रहा है तू, तेरा लड़का वीडियो बना रहा है। मेरा मोबाइल छीनकर तोड़ दिया उन्होंने और तोड़कर गाली गलौज की और साथ में ले गए मोबाइल। और उसके बाद में सब लोग बोले कि अब तू यहाँ नहीं रहेगा, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, पुलिस कब तक बचाएगी तुझे। इसके बाद में और भी पत्थर वगैरह फेंके उन्होंने और गाली गलौज करी और बहुत डरे हुए स्थिति ये बन रही थी कि सर अब तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब क्या डर है, कितने क्यों डर है? हम लोग डरे हुए हैं, क्या कब क्या कर रहे हैं ये इनका कोई भरोसा नहीं है अब तो। फिर आगे क्या सोचा आपने? आगे अब यहाँ से देखते हैं, हम कुछ और कहीं और देखते हैं, यहाँ से तो छोड़ना पड़ेगा मोहल्ला, ऐसी स्थिति बन रही है। तो आपका ये खुद का पुश्तैनी घर? जी पुश्तैनी घर है, हम तो जन्म से रह रहे हैं यहाँ पर। तो घर क्यों छोड़ना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा? पलायन नहीं करना पड़ेगा, सब ये ऐसी स्थिति बन रही है जो खुद धमकी दे रहे हैं कि अब तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। फिर गलती क्या थी? हमारी गलती ये थी कि मैं वहाँ से आया था, हम तो यहाँ खड़े थे देख रहे थे, बाहर आया तो मुझसे बोला कि आप वीडियो बना रहे हो। मैंने कहा वीडियो नहीं बना रहा। मेरे से मोबाइल छीना उन्होंने, मोबाइल छीन के तोड़ा, गाली गलौज करी, धक्का मुक्की करी और ऊपर पथराव करा। ये देख सकते हो आप पथराव की स्थिति। गुना में जो हिंसा हुई, जुलूस पर जो पथराव हुआ, उसमें पुलिस ने मुख्य आरोपी विक्की पठान को बनाया है। विक्की पठान को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब विक्की पठान के घर के लोग मेरे साथ हैं, खासकर घर की महिलाएं हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है, इनके क्या तर्क हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से चल रहा है। विक्की की पत्नी है विक्की पठान की, उनसे मैं पहले पूछता हूँ, आप बताइए हुआ क्या है? विक्की को तो अरेस्ट कर लिया है, मुख्य आरोपी बनाया है। गलत बनाया है। वो घर पे थे, सब लोग दुकान के आगे खड़े थे, उधर से पथराव हुआ तो अपने बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए इधर से भी पथराव कर दिया। वहाँ मस्जिद के आगे धमैया कर रहे थे आपस में, तो वो क्या बोलते, वो वहाँ पे थे ही नहीं वहाँ पे। और वहाँ से आवाज़ आई उधर से कि उधर पथराव हो रहा है, तो हम लोग सारे अंदर आ गए। बस ये बात है कि और कुछ बात नहीं है। और बाकी में और उठा के ले गए, हमारे पति को यहाँ से उठा के ले गए, बच्चों को उठा के ले गए। पुलिस वाले आए जो गेट तोड़ गए, मेरे कपड़े खींच गए और उन्होंने मेरे की तो मेरे बिल्कुल ना सुनी। मैं कह रही हूँ उनसे, कौन खींच गया? पुलिस वाले ये कह रहे थे हट यहाँ से हट। मैंने की नहीं, मेरे बच्चे डर के मारे, मेरे बच्चा छोटा